Good morning, grade 5. How are you? I hope you are doing good. Enjoying the summers as well by staying home. Welcome to your mathematics online class, and it's our lecture number 6, that is of page number 8. Its first question. We will learn about the 5-digit number, or we are going to use 5 or 6-digit numbers in these pages. Its question number 1 is write the value of the color digit. As we have done before this to find out the value. The first one is 1,20,493. We are going to do its B part, okay? It is 1,20,493. Again, we will write it as the place value chart. The first one will be ones, the second one will be tens, then hundreds, then thousands, then 10,000 and lakh. So 1 is under lakh. It's 1 lakh, and we are talking about the 5-digit or the 6-digit numbers. Okay, so 1 lakh, or you can write it as 100,000. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख. ठीक है, तो ये 1 लाख हो जाएगा हमारा. देयर आर 5 zeros in 1 lakh. Come to its exercise question number 2. Write in expanded form. Write in expanded form. I have done question number इट्स सी पार्ट इन डिटेल, और उसके बाद आप उसको सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट ईजीली. आप इसको पहले समझ लें कि करना कैसे है हमने, तो फिर आपके लिए बाद में बहुत आसानी हो जाएगी. उसको आसानी से करने के लिए आप वैसे ही उसमें ज़ीरोस पुट कर सकोगे. ओके, द फर्स्ट वन इज़ 4,29,502. 4,29,502. We know that the first value 2 is ones, is in ones. ये ones में है ना 2. ठीक है, तो in ones means 2 multiplied by 1 equals to 2. इसका क्या मतलब हुआ कि 2 as it 2 ही रहेगी वैल्यू. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ज़ीरो, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो. जहाँ भी ज़ीरो आएगा हमेशा उसकी जगह हम एक ज़ीरो ही लगाएंगे. हाउ? इफ़ इट इज़ इन टेंथ प्लेस, तो हम ज़ीरो को जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं द थिंग बिकम्स और द नंबर बिकम्स ज़ीरो. वो नंबर क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. The third one is hundreds. 5 hundreds. We are going to multiply 5 into 100 equals to 500. ठीक है? And the next one is thousands, and we are going to multiply 9 with the 1000 and it will be 9,000. The next one will be 10,000. 2 into 10,000 means it is 20,000. 2 into 10,000, 10 2s are 20, and if it is 10,000 it will be 20,000. And 4 lakh, we know that there are 5 zeros in 4 lakh, in lakh, sorry. So we are going to multiply by 4 by 1 lakh. It will be 4 with 5 zeros. Okay, 4 lakh. So the answer will be starting from the down to the upward, from bottom to the upward. The first one is 4 lakh, then 20,000, then 9,000, then 500, 0 and 2. There is another way. Ones में सिंपल हम जो भी वैल्यू है वो एज इट आ जाएगी. सेकेंड वैल्यू के साथ में आप एक ज़ीरो पुट करोगे बिकॉज देर आर दिस इज़ द टेंस वैल्यू. जो भी वैल्यू होगी आप उसके साथ हमेशा एक ज़ीरो पुट कर दोगे. एंड इन द हंड्रेड्स वैल्यू check the if I'm gonna put hand on 429, so what's left? 502.
5 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ आराम से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है 9। 9 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं बेटे, देयर आर 3 डिजिट्स ना, तो हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे 9 के साथ। एंड इफ़ द नेक्स्ट वन इज़ 2 लिखेंगे एंड चेक द डिजिट्स आफ्टर 2, 1 2 3 4, देयर आर 4 डिजिट्स एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर 4 zeros and write 4 next. And how many digits are after that, 1 2 3 4 5, there are 5 digits and we are going to write 5 zeros. Its B part is 11,204. Starting from the right side we will write 4 as it, and I told you 0 हमेशा वैसे ही आएगा, क्योंकि 0 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर इट्स इन टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इट विल बी 0. और द नेक्स्ट वन इज़ 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे उसके साथ में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1 and after 1 there are 3 digits, we are going to put 3 zeros, and after that it's again 1 and we are going to count the digits after that value. There are 4 digits and we are going to put 4 zeros in that. So it will be 10,000 plus 1,000 plus 200 plus 0 plus 4. The next one is question number 3. Write the numbers in figure placing your commas correctly. We have to write the numbers in the place value chart like we have written here roughly. Okay, the first one is 7,538. It means that we need the chart till lakh. तो हम क्या करेंगे, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s and then lakh. हमें lakh है तो it means that it is in पाकिस्तानी number system. तो हमें बहुत carefully इसमें values लिखनी है. 7 lakh, 7 will come under lakh, or 538, 5 will come under 138. It will comes 30 comes in tens and 8 in ones, 38. ठीक है, ये मिलाकर ones और tens को हो गया 38, means 30 plus 8. अब जो वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आई और the blocks are blank or the empty one, we have to put zeros there. ठीक है, ये सिर्फ हम zeros वहाँ लिख कर उसको fill up करेंगे. The second one is also the same, the third one, that is 111,000, 111,001. फिर से वही करेंगे, सब डिविजन्स बना लेंगे, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, then lakh. और हमें चाहिए क्या, 111,000. अब देखें इसमें 1 लाख नहीं आया, 111,000. इट मीन्स दैट 100,000 की बात हो रही है. 100,000 में वी विल राइट 1, आफ्टर दैट 11,000, तो 1000 और 10,000 वाले को मिलाकर इट विल कम्स इन 11,000. हम यहाँ 1 लिख देंगे एंड 1, क्योंकि 1 है तो सिंपली वंस में आएगा. एंड देयर आर अगेन 2 कॉलम्स लेफ्ट और द 2 blocks आर फ्री, सो वी हैव टू पुट 2 zeros देयर. इज इट क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Put these numbers in international periods. International period, हमें पता ना, there is a little difference in Pakistani और in international periods. क्योंकि पाकिस्तान में thousands में we have 2 columns like 1,000 and 10,000. While in international periods we have 3 like 1,000, 10,000, 100,000. You can check here. I have made that. Come to its B part, that is 817,724. The value is 817,724. We have to simply write the commas very carefully. We have to write these values in international periods also, and for that the first one is ones, then tens, the third one is hundreds. देखें यहाँ आ गया, it's a separate period of units. ठीक है, we have to put comma उसको separate करने के लिए, then 7, then 1 and
8, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, पीरियड्स कहते हैं, वो जो हम डिविजन्स या फैमिलीज बनाते हैं इसकी, ठीक है। एंड द C1 इज 605,000, 605,000 and 16, 605,000 and 16। अब देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ हमारा एक पीरियड ख़त्म हो गया या एक फैमिली पूरी होगी। वी हैव टू पुट कॉमा देयर। देन 5, 0 and 6, 605,000, ये हमारी एक सेपरेट 1000 की फैमिली होगी। अगर इसे और ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास तो हम उसको मिलियन की फैमिली में ले जाते। फिर यहाँ 6 के बाद भी कॉमा आता, सॉरी 6 से पहले। नेक्स्ट come to exercise number question number 5, change these numbers from international to Pakistani periods। देखिए इंटरनेशनल पीरियड में हर 3 वैल्यू के बाद कॉमा होगा, जबकि पाकिस्तानी में फर्स्ट 3 होंगी, देन 2 एंड देन 2, ठीक है। अब हमें इसको देखना है। इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया एट एवरी 3 उनका कॉमा होता है या एट एवरी 3 उनका पीरियड ख़त्म होता है। पाकिस्तानी में करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एवरी 3 के बाद ही आएगा, फिर 2 के बाद आएगा, जैसे 00 के बाद यहाँ है, ठीक है। इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट द डी पार्ट 3,58,112, तो क्या होगा, 3 के बाद आएगा, देन बेटे 2 के बाद आएगा, 2 वैल्यूज़ के बाद, 8 एंड 5 के बाद 58 से पहले आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इज़ इट क्लियर? कम टू 6th क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर। सक्सेसर में हम हमेशा क्या करते हैं, 1 नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 नंबर ऐड करते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 1 ऐड किया, किस वैल्यू में, इट्स बी पार्ट इज़ 2,45,499, 2,45,499। तो हमारे पास ये क्या हो गया बेटे, जब उसमें 1 ऐड किया तो इट बिकम्स 2,45,500। ये हमारा सक्सेसर है ऑफ 2,45,499 का। और इफ़ वी टॉक अबाउट द डी पार्ट दैट इज़ 3,49,999। इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 3,50,000, 3,50,000। Its last question is write the correct symbols greater than, smaller than or the equal sign in each blank। हमें क्या करना है, देखना है either the value is greater or smaller or the equal। So we have to solve the side। For example, in B part they have given us 3,84,292। If we subtract 10 from that value, what will be the answer? It's 3,84,282। उसको माइनस किया तो ये आंसर आया। अब इसको हम जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है उससे मैच करेंगे, दैट इज़ 3,84,283, 3,84,283। इसका मतलब है 83 तो बड़ी वैल्यू है ना हमारी, 83 बड़ी है, जबकि जो आंसर माइनस करके आया है डैट इज़ 82। सो द ग्रेट इट विल बी द ग्रेटर साइन, देयर विल बी द ग्रेटर साइन आएगा यहाँ पे। एंड इफ़ इट्स डी पार्ट इज़ 3,58,666 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कहते हैं क्या उसका आंसर जो है इधर इट्स इक्वल टू द अदर साइड, लेसर और द ग्रेटर वन। अब हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया है एंड द आंसर इज़ 7,17,332, जो कि इक्वल है सेकेंड साइड के। इज़ इट क्लियर? आपने वैसे ही करना है जैसे जो क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं, दीज आर इन द असाइनमेंट एंड यू हैव टू कंप्लीट दोज। ओके, अल्लाह हाफिज़।